Hi guys, welcome to SS Studio. My name is Sanyukta Singh. I have given my introduction earlier. Still, those who are new to my channel, I would like to give my introduction again. I'm a textile designer by profession and a NIFT graduate. I am here with my second video, with my second session on Photoshop for beginners. As you all know that I am teaching you Photoshop. I'm taking the sessions of Photoshop for the beginners. I'm teaching the basic tools of Photoshop, and these tools would be very much helpful for everyone, those who want to start with Photoshop. So without wasting much of the time, I would like to say the tools I would be using today are the lasso tool, the basic lasso tool, the polygonic lasso tool, and the magnetic lasso tool. So guys, welcome to the screen and let's start with the work. So as you know, I've taken my page already. Let's take it afresh. Like as I have taught you, go to File, New, choose your dimensions. Like you can choose custom, you can choose international paper, anything. So let's name it Design 2, and I'm taking it custom. I can define my width and define my height. So I've taken here it's 16 inches by 9 inches. Resolution I have taken 200. Let's take it 300 pixels per inch. White. So let's create it. It got created. So guys, like in the previous session I've taught you what is selection tool and how to use feather. So here I'm going to teach you the third tool in our toolbox, which is the lasso tool. Now when you click on it, you get three options: lasso, polygonal lasso tool, and magnetic lasso tool. Now the first one, lasso tool. The free hand movement of this tool is termed here as lasso, like you can see this. Now I have also every time taught you that you should always work on new layer and not on the background. So यहाँ पे आप जब भी कोई भी काम करने जाओगे, आप नया लेयर बनाओगे. मैं भूल गई थी, मैंने आपको दोबारा बताया. तो यहाँ पे अब मैं किसी भी तरीके से फ्री हैंड मूवमेंट के साथ, ये देखो, कोई भी चीज़ क्रॉप कर सकती हूँ या कोई भी डिज़ाइन ले सकती हूँ या कुछ भी बना करके इसे, जहाँ से मैंने अपना कर्सर शुरू किया है, मैं उसका एंड वहीं पे उसे टच कराऊंगी, तो वो ऑटोमेटिकली एक क्लोज्ड सिलेक्शन ले लेगा. ठीक है, ये हमेशा याद रखना. जब आप अपने कर्सर को उठा रहे हो, यू शुड ऑलवेज टेक इट टू द स्टार्टिंग पॉइंट और अपने कर्सर को छोड़ दो and it will select the area. अब again, if you want to use color in it, you can choose any color from here, जो हम पहले करते थे. ठीक है, ये जो सिलेक्शन टूल था हमारा पहले, जिसमें हम एलिप्टिकल और रेक्टेंगल पे काम कर रहे थे, उसी को हम थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन में लेकर आ जाते हैं लासो टूल में. ठीक है, अब ये तो सिर्फ आपने एक नॉर्मल शेप ले लिया. आप चाहो तो कोई पिक्चर डाउनलोड कर सकते हो. अगेन मैंने आपको वेबसाइट बताई थी unsplash.com. यू कैन गो देयर एंड यू कैन सेलेक्ट योर ब्यूटिफुल पिक्चर्स ऑफ ब्यूटिफुल डायमेंशंस. वो कभी ब्लर नहीं होंगी. आप उसे फ्लायर में यूज़ कर सकते हो, आप उसे किसी भी डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हो. सो आई हैव ऑलरेडी सेव्ड सम पिक्चर्स फ्रॉम देयर. सो लेट्स सेलेक्ट सम पिक्चर्स ताकि मैं उसमें आपको लासो टूल का वर्क दिखा सकूं. ठीक है, सो आई गो टू माई डाउनलोड्स एंड आई चूज दिस वन, ओपन. ठीक है, सो ये रही मेरी पिक्चर. अब हम इसे कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं इस टूल को. द फर्स्ट वन इज, आप चाहो तो जो आपने
ऑलरेडी ड्राइंग पैड लिया हुआ है, उसके ऊपर इस इमेज को मैं आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ। अब इफ़ यू वांट, इफ कि आपको इस लेयर का कोई काम नहीं है, यू कैन लाइक क्लोज दिस लेयर। इसकी जो आई का आइकॉन बना हुआ था उसको आपने प्रेस करना है, वो बंद हो जाएगा। नहीं तो यू कैन सिंपली ड्रैग इट हियर ऑन द डिलीट ऑप्शन एंड यू कैन डिलीट इट। ठीक है, अगेन आप चाहो तो यहाँ से एक न्यू लेयर ले सकते हो। लेट्स क्लोज दिस लेयर एंड अब लेट्स गो टू द फोटो ऑप्शन। इस बैकग्राउंड को आप डुप्लीकेट कर लो, बिकॉज बैकग्राउंड पे काम नहीं करेंगे। ओके, अब if I really want to use my lasso tool in very simple way, the basic, मैं क्या करूँगी, I again take the mouse और मैंने इतने पोर्शन को ड्रैग कर लिया है। देखो, अब जो मैंने चूज किया है ना वही सेलेक्ट होगा। अब अगेन कॉपी इट, मैक में कमांड और सी, और बाकी विंडोज के लैपटॉप में कंट्रोल और सी। इसको मैंने कॉपी किया, आई गो टू माई डिज़ाइन 2 पेज एंड आई पेस्ट इट, कमांड वी। ये देखो, अब सी वी से कमांड वी या फिर कंट्रोल वी से पेस्ट हुआ। अगेन कंट्रोल टी या फिर कंट्रोल कमांड टी से हम इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में आपके बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप इसको किसी भी डायमेंशन में स्ट्रेच कर सकते हो। अगेन इफ आई प्रेस शिफ्ट एंड ड्रैग विथ माई माउस बाय क्लिकिंग इट, तो ये बिल्कुल परफेक्ट डायमेंशन में ड्रैग होता है और वेरी परफेक्टली ये ड्रैग हो रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, आई प्रेस एंटर हियर, so like this I have used my lasso tool and I have selected the image, the particular area from the image, and then designed it. I hope this is working for you guys. Up again, I'm going to show you how to use the second option of lasso tool, which is polygonal lasso tool. ठीक है, इसके लिए हम अगेन फोटोज़ पे जा कर के एक न्यू लेयर ले लेते हैं एंड आई थिंक वी शुड क्लोज दिस वन। तो इसके लिए हम दोबारा नॉर्मल क्लिक कर देंगे तो ये चला जाएगा। लेट्स टेक द पॉलीगोनल लासो टूल। पॉलीगोनल लासो टूल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क ये है कि ये ज्योमेट्रिकल वे में चीज़ों को सिलेक्ट करता है, ना ये फ्री हैंड होगा ना ये कर्व होगा। सो जहाँ से भी हमें पिक्चर को सिलेक्ट करना है, वी शुड क्लिक देयर। सी, यहाँ से मैंने अब जैसे कि ये मैंने थोड़ा गलत क्लिक कर दिया है, तो इस केस में आप क्या करोगे, ऑलवेज़ यूज़ बैक स्पेस और डिलीट। ये डिलीट हो जाएगा या फिर पीछे चला जाएगा। सो आई चूज़ माई पॉइंट हियर और यहाँ से मैंने इसको चूज़ किया है, आप देख सकते हो। अगेन जिस पॉइंट पे मुझे अपना स्टे चाहिए आई क्लिक देयर, फिर मैं नीचे आ गई, फिर मैंने इतना पोर्शन चूज़ किया, आई क्लिक इट हियर, फिर मैंने इतना पोर्शन चूज़ किया, आई क्लिक इट हियर, अगेन मैंने इतना पोर्शन चूज़ किया, आई क्लिक इट हियर, एंड अगेन आई एम गोइंग टू माई स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे जैसे ही जाओगे यू विल सी कि वो जो पॉली मैग्नेटिक टूल का ऑप्शन है उसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल क्रिएट हो गया है। दैट मीन्स कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो और दिस विल बी योर फाइनल क्लिक और आपका वो एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, एज यू कैन सी। अगेन आई कमांड सी इट, मतलब मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, आप कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हो एंड go to my design page, my drawing pad, and I paste it here. अब देखो जैसे ही पेस्ट करती हूँ ये पिक्चर भी आ गया हमारा। मैं अगेन इसे कमांड टी और कंट्रोल टी प्रेस करूँगी एंड आई ट्रांसफॉर्म इट बाय यूजिंग माय शिफ्ट ऑप्शन विच इज़ दिस वन, और ये देखो आई ड्रैग इट हियर। तो इस वे में मेरा ये ज्योमेट्रिकल सिलेक्शन हुआ है, which I have used polygonal lasso tool. ठीक है, not magnetic, polygonal lasso tool. So
इसी तरीके से मैं मैग्नेटिक लासर टूल भी यूज़ करूँगी। अब मैग्नेटिक लासर टूल कहाँ पे यूज़ करते हैं? बेसिकली मैग्नेटिक लासर टूल हम यूज़ करते हैं अगर हमने कोई कर्वी इमेज या फिर स्टाइलाइज्ड इमेज ली है। स्टाइलाइज्ड और कर्वी इमेज, जैसे हमने कोई फ्रूट को कॉपी करना है, या फिर हमें कोई कोई भी फिगर हो, लाइक फैन हो, लाइक एनीथिंग, एनी डिज़ाइन, एनी टेक्सटाइल आइकॉन, एनी टेक्सटाइल मोटिव और एनी प्रिंट और पैटर्न जो कि आपको कॉपी पेस्ट करना हो, कोई लोगो आप बना रहे हो उसको कॉपी पेस्ट करना हो, उसके कुछ एलिमेंट्स को कॉपी पेस्ट करना हो, तो वो आप आराम से कर सकते हो। तो मैं ये मैग्नेटिक वाला ऑप्शन आपको दिखाती हूँ कोई अलग इमेज लेकर के। सो आई गो टू फाइल, ओपन इट, and I will choose my this option, the fruit one. See, ये देखो। अब इसमें सिलेक्शन मैं कैसे करूँगी? अगेन कहीं पे भी मैं चूज़ करूँगी अपना स्टार्टिंग पॉइंट, और अब आप इसमें देखोगे कि ये अपने आप कर्व्स पे सिलेक्शन ले रहा है, आपको इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है आप वहाँ वहाँ पे ऑलरेडी अपने सिलेक्शंस को डाल सकते हो, लाइक दिस वन। अब कहीं पे अगर गलत हो गया या कहीं गलत सिलेक्शन ले लिया किसी ने आपके कर्सर ने, तो आप इसको डिलीट या बैक स्पेस के ऑप्शन से वापस भी आ सकते हो। अब ये इमेज हम क्या कर सकते हैं, हम इसे जूम कर सकते हैं। अगेन कंट्रोल प्लस या फिर कंट्रोल कमांड प्लस को लेकर के हम जूम इन कर सकते हैं, और कमांड माइनस या कंट्रोल माइनस को लेकर के हम जूम आउट कर सकते हैं। अब आप देख रहे हो कुछ गलत सिलेक्शंस हुई हैं, सो आई गो एंड बैक स्पेस इट और डिलीट इट फ्रॉम माई मैक। ये देखो, ये देखो। अब मैं यहाँ पे इसे जूम इन करके बेटर तरीके से सेलेक्ट कर पाऊँगी। ये देखो, देख रहे हो आप, लाइक ये देखो। आप देख सकते हो पिक्सेल्स में फोटोशॉप के पिक्चर्स होते हैं, बिकॉज इट्स अ रास्टर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये मैंने चूज़ किया, ये मैंने चूज़ किया। ये गलत गया तो मैं इसको वापस लेकर आ जाती हूँ थोड़ा। ठीक है, ये देखो, दिस इज आई एम चूजिंग द इमेज एज यू ऑल कैन सी। अब देखो, अब मैं अगेन थोड़ा सा जूम आउट करूँगी, जूम आउट की। ये देखो, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन ले रहा है कर्व्स पे, दिस आई हैव चोजन। ठीक है, तो अब अगेन आप इसको कंट्रोल सी और कमांड सी करके अपने ड्राइंग पैड पे ले जा सकते हो। आप चाहो तो ना एक नया लेयर बना लो। ठीक है, उस लेयर पे मैं काम कर रही हूँ। ये देखो, कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट करा, कंट्रोल टी से मैंने उसको ट्रांसफॉर्म करा। अब आई हैव चोजन द थोड़ा एडवांस ऑप्शन चूज़ कर लिया, तो मैं उसको अभी बैक करूँगी और ये मैं आपको बाद में बताऊँगी कि और क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शंस होते हैं। सो सी, आई एम प्रेसिंग शिफ्ट प्लस माउस से मैं ड्रैग कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये एरिया हमें नहीं लेना था, पर हमने चूज़ किया है, तो हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे? अगेन मैं सिंपल, अगर चाहूँ तो मैंने सिंपल वही मैग्नेटिक लासर टूल लिया और आई प्रेस इट हियर। ये देखो, ये एरिया मैंने चूज़ कर लिया और आई जस्ट प्रेस डिलीट एंड इट गॉट डिलीटेड। इस तरीके से हम लासर टूल, पॉलीगोनल लासर टूल और मैग्नेटिक लासर टूल को यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सारी फिनिशिंग है जो आप कर सकते हो, बट इस पे हम अगले सेशन में बात करेंगे। आई वुड सजेस्ट कि पहले आप इतना सीखो, इतना करो। कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताती हूँ, लाइक फिनिशिंग, जैसे कि मैंने आपको इसको डिलीट करके बताया। अब इसी इमेज पे देखो, यहाँ पे इसको जूम इन करोगे या फिर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो।
एंड डिलीट इट। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को डिलीट कर सकते हो जो गलतियाँ करी होंगी। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि मैं आपको सिखाना चाहूँगी, बट अगर मैंने आपको एक बार में बहुत सारी चीज़ें बता दी तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे और आप चीज़ों को सीख नहीं पाओगे। सो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और हम स्टेप बाय स्टेप अपने टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, अब अगले सेशन में मैं आपको लासो टूल से कलर्स चेंज कर, लासो टूल से सिलेक्शन को ना कि सिर्फ सेलेक्ट करना, लाइक ये जो पिक्चर्स हमने ली थी, अगर हम चाहें तो हम इसके बैकग्राउंड में इसके जो स्काई है उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं आप एक बार देख लो। I go to polygonal lasso tool, I click here, ये सिलेक्शन लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया। देखो ये जो छोटा सा सर्कल आया है, दिस मीन्स कि हमारा सिलेक्शन ओवर होने वाला है, बिल्कुल हम सही जा रहे थे। अब अगेन इफ़ आई वांट कि मुझे ये स्काई का कलर चेंज करना है, आई कैन ऑलवेज go to my color option, choose a different sky, like I can choose this one, okay, and I can go to my bucket option and I can fill it. आप देख सकते हो स्काई का कलर चेंज हो गया है। इस तरीके से देर आर वेरियस थिंग्स, देर आर वेरियस ऑप्शंस टू एक्सप्लोर in this lasso tool, this magnetic lasso tool and polygonal lasso tool, which I will be making you understand in my next sessions। जब मैं कोई लोगो बना रही होंगी या जब मैं कोई फ्लायर डिज़ाइन कर रही होंगी तो ऐसे बहुत से ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करेंगे। एक चीज़ और जो मैंने आपको नहीं बताया था या मैं बताना भूल गई थी पिछले सेशन, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेट्स टेक अ न्यू पेज, let's take any size like this one, let's create it। कि एलिप्टिकल टूल जो होता है, ठीक है, आई एम टेकिंग दिस। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते थे, हमने जस्ट एक कलर लिया जो ऑलरेडी चोज़न है और इसको फिल कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, द ऑप्शन इज सिलेक्शन टूल में एंटी एलियास। एंटी एलियास का ऑप्शन है। अब ये क्या होता है ये आपको पता चलेगा, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैं इस ऑप्शन को लेट्स टेक अ न्यू लेयर एंड लेट्स चूज एंटी एलियास and let's create a different circle, yeah, and fill color onto it। आप देखो ये दो सर्कल हमने बनाए हैं विथ 1 मिनट। ये देखो, जो पहला वाला था उसमें एंटी एलियास का ऑप्शन चूज़ नहीं किया हुआ था, जो सेकंड वाला था उसमें एंटी एलियास का ऑप्शन मैंने चूज़ किया। आप देखो जो कर्व्स आए हैं पहले सर्कल के और जो सेकंड सर्कल के, उसमें डिफरेंस है। जो बेसिकली हम इसे गेमिंग्स में यूज़ करते हैं, ये देखो तो डिफरेंस, इसके एजेस रिफाइंड नहीं है। वेर इज दूसरा जिसमें मैंने एंटी एलियास चूज़ किया था, इसके एजेस डिफाइंड हैं। ये देखो जो इसके कर्व्स हैं ये बिल्कुल यहाँ पे इनके टिंट्स एंड शेड्स यूज़ करके उसी कलर के उसको मैनेज किया हुआ है, उसको सॉफ्ट किया हुआ है। तो एंटी एलियास का ऑप्शन यूजुअली गेमिंग में यूज़ होता है और एंटी एलियास का ऑप्शन हम डिज़ाइंस में यूज़ करते हैं ताकि वो हमारे डिज़ाइंस को प्रॉपर स्मूथ और प्रॉपर कर्व दे। वेर एज जब हम एंटी एलियास का ऑप्शन नहीं यूज़ करते हैं, वी गेट दिस काइंड ऑफ कर्व्स। ठीक है, ये देखो जो कि हम गेमिंग्स में यूज़ करते हैं। कई बार आपने देखा होगा जो उसके आइकॉन्स होते हैं उसके बाद रफ एजेस होते हैं। सो दिस वाज एंटी एलियास का एक ऑप्शन जो मैं आपको बताना भूल गई थी, जो मैंने आपको इस सेशन में बता दिया है। सो गाइज आज हमने सीखा है
नो डाउट एंटी एलियास के बारे में ऑन एलिप्टिकल टूल विच इज़ ऑन सिलेक्शन टूल हमने सीखा है. So guys, do this second session of Photoshop was helpful for you or not? Do mention it on the comment section below and do subscribe my channel and please hit the bell icon for notifications for the video. I will meet you in the next session 3 with some more tools of Photoshop. Till then, bye bye. Thank you. Be safe, be healthy.